is that we don't have a leader who can truly represent the Muslims of the world. Do you agree with me or not? Khalid Khan introduced me to some of his students so that I could find out the opinion of young Muslims on this dilemma. I would like to begin with the name of Ahmadinejad. A person like this is the person we need. I don't think so that it is possible for a single person to lead the whole nation. ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई अगर हमारे बीच है भी तो हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे शायद. President of Pakistan. प्रेसिडेंट तो हैं वो, मतलब वो एक इस्लामी लीडर नहीं कहलाए जा सकते. अफगानिस्तान में मौलाना मोहम्मद उमर, उसको आप लीडर कह सकते हैं. 3 qualities given by the Prophet for a good leader. Number 1 is taqwa. लीडर ऐसा हो जो कुछ कहे, जो वादे करे, वो करके भी दिखाए. Number 2, he must be a warrior. हमारे लीडर्स यहाँ कहते हैं कि ड्रोन अटैक्स बंद करो, नीचे उनकी टांगें कांपती होती हैं. And third, he must be a qazi, a person who can justify things and judge them. डिसीजन अपना खुद ले लें. पूरी मिल्लत को साथ लेके चलने की बात करो. हम इमदाद के बगैर चल सकते हैं. मॉडर्न जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. एक लीडर को ऑनेस्ट होना चाहिए और ऑनेस्टी आपके अंदर उस वक्त डेवलप होती है जब आपको सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो कि आपने अल्लाह ताला को जाके कुछ बोलना है. Khilafat had its issues too. Muawiyah was the first military and political leader to initiate the caliphate in the sense of a hereditary monarchy by appointing his son as his successor. This started a new phase in Islamic history, the rule of the Umayyad family. The coming caliphs were successful political leaders, but not necessarily men of moral integrity with complete religious knowledge. Thus, the true essence of Khilafat eroded step by step, and it converted into royal caliphate. मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या बात है जो कही जाती है खिलाफत का निज़ाम. क्या निज़ाम है पूछिए. उसकी वजह यह है कि अगर उससे मुराद अब्बासियों की हुकूमत है, उससे मुराद उमवियों की हुकूमत है, तो वो तो मलूकियत थी, बादशाहत थी. बाप के बाद बेटा हुक्मरान हो जाता था. उस्मानियों के हम यही था. देखिए, खिलाफत बनु उमैया और खिलाफत बनु अब्बास, ये तो इस्लाम के कुछ जवाल का आगाज हुआ और आहिस्ता 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 वहां तक पहुंचा. और ये नहीं हम कह सकते कि दौरे खिलाफत राशिदा के बाद अचानक इस्लाम बिल्कुल धड़म से नीचे गिर गया. नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऊपर के लेवल पर पहले सियासी सतह के ऊपर तनज़्ज़ुली का आगाज शुरू हुआ कि बजाय इसके कि लोगों के मशवरे से तकर्रुर हो खलीफा का. वहां पर तो डायनेस्टी हो गई थी, वो एक बाप के बाद बेटा. ये असल में जो निजाम था खिलाफत राशिदा का, दैट वाज 100% इस्लामिक. 10 years of मदीना and 30 years of खिलाफत राशिदा, ये मॉडल है हमारा. Apart from the struggles between the would-be caliphs and the conflict between the Shia and the Sunni caliphate, there were external factors too which contributed to the decline. On one side, there were Zionists. Theodor Herzl, the father of modern political Zionism, contacted Sultan Abdul Hamid II, the last Ottoman caliph to rule with power, for a deal. Theodor wanted the Sultan's approval of a charter allowing Zionist settlements in Palestine. His offer, payment of a significant portion of Ottoman debt. The Sultan's dearest wish to rescue the empire from indebtedness which it had fallen into as a result of easily accessible European loans could come true with the stroke of a pen. But the Sultan refused. To have the scalpel cut my body is less painful than to witness Palestine being detached from the Khilafah state, and this is not going to happen. Let the Jews keep their millions, and once the Khilafah is torn apart one day, then they can take Palestine without a price. On the other side, Lawrence of Arabia, a British MI5 agent, became the root cause of the Arab revolt against the Ottoman Caliphate. Their main attacks during the revolt were on the France-Hejaz railway service started by the Ottomans to serve Muslim pilgrims. The resistance towards the creation of Israel and the rise of British colonialism added to the internal power struggles and proved disastrous for the Khilafat. The shadow of God was no longer there. It was now the Queen's shadow.
आज जब मुसलमान इतनी ज्यादा तादाद में दुनिया में मौजूद हैं और दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, आज एक खलीफा का तकर्रुर कैसे किया जाएगा? नहीं, जब आप क्या समझते हैं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नामजदगी जब हुई है, उस वक्त उम्मत कहां तक फैली हुई थी? वहां पर जाहिर बात है कि ट्राइबल सिस्टम था। इफ द ट्राइबल एल्डर्स वो बैठ गए, उन्होंने फैसला कर लिया, तो अब हर एक को पर्ची देना जो है वो उसकी जरूरत नहीं थी। उस वक्त तो ये तरीका इख्तियार कर लिया गया, लेकिन आज क्या होगा? अभी तो फिलहाल ये कि पाकिस्तान की हद तक की अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर है, इससे बजाय इसके कि हम ज्यादा फैल जाएं तो वो एक नजरी बात तो ज्यादा हो जाएगी, अमलन मुश्किल है। एक ऐसा सिस्टम जो कि सिर्फ नजरी तौर पर काबिल अमल हो, वो अपना एसेंस खो देगा। आज उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? नहीं, उसके अंदर ये है कि जैसे अगर मैं कहता हूं फर्ज कीजिए पाकिस्तान है, यहां ले लीजिए, सबसे पहले इस्लाम यहां पर कायम हो जाता है। अब आइंदा खलीफा कैसे आएगा, उसके लिए कोई न कोई निजाम होगा पब्लिक की राय आम्मा को जानने का। आज जो है आप इसको वोट के जरिए तय करेंगे, लेकिन ये हमें मालूम हो गया कि है बाहमी मशवरे से बनाना है आपने। ये कोई शख्स जो है वो जो है किसी और खानदान की बुनियाद पर क्लेम करने वाला नहीं आएगा। लेकिन वो इकबाल ने जो कहा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, उसके लिए कुछ शराइत होंगी। अगरचे कुछ शराइत तो हमारे इस आइन के अंदर भी हैं और जिनसे दोनों गज़े बसर कर लेते हैं। जो भी अहलुर राय लोग हैं इस मुल्क के, वो मिलजुल कर कोई एक ऐसा खाका बनाएंगे कि फिर ये कि उस राय का बेहतर से बेहतर तरीके से मालूम हो सके। और ये प्रोसेस बनाना पड़ेगा। जी हाँ, बनाना पड़ेगा। जैसे उसमें इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि जैसे आजकल का ये निजाम है राय मांगने का, ये राय है ना, वोट क्या है। पहले खिलाफत मलूकियत में तब्दील हो गई, आज आप उस सिस्टम को दोबारा इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। क्या दोबारा वो सिस्टम उसी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होगा? नहीं, देखिए वो तो दुनिया के अंदर कोई भी चीज जो है वो दायमी नहीं है। क्या कम्युनिज्म दायमी साबित हुआ? क्या कैपिटलिज्म मरता हुआ नजर नहीं आ रहा है? लेकिन ये कि ये हमारा फर्ज है और आज हमारे अंदर इसका कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है। Since the fall of the caliphate, Muslims have never been able to unite as an ummah and are living in chaotic times. But in the middle of this chaos, there were individuals who came up with new ideas. Next week on the State of Sharia, we see how Islamist revolutionaries emerge on the globe in order to revive political Islam and what they give the world. The word ideology doesn't even exist in the Arabic language. If you try to bring down Muslim ideology within the poles of East and the West, then you'll have a confusion. आप चाहते हैं निज़ाम बर्पा करना, इनकलाब लाना, आप चाहते हैं इस्लाम को बर्पा करना, उसके लिए जान दीजिए। They could no longer maintain the lie of Islamism. Radical militant organization which is banned in many countries of the world. Islam as a standalone, independent concept and code of life. बंदूक की नोक पर जब हुकूमत कायम की जाती है तो आप उसके लिए इस्लामी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। There is no need to conquer places now. I unilaterally announced my resignation from the leadership of Hizb ut-Tahrir.